Okay, in the last lecture, we have started the unit 2. Okay, unit 2 is related to web applications. Okay, web applications. In the unit 2, we have to learn about web application. In unit 1, we had learned about the basic what is .NET framework. Okay, then applications वगैरह, then .NET framework, CLR वगैरह, working of CLR, C# language we had learned वगैरह, ठीक है, and all the programs we had done in the console application. Now we will start our web form web applications. We will now learn about the web form web applications. But before that, before starting the program, we have to learn about the web application, some theory, some concept. Okay, then we will start the practicals. In the last lecture, we have started about the anatomy of web form. Okay, anatomy of web form matlab the introduction of web application. Okay, introduction of web application. Yes, how to create web application in the Microsoft Visual Studio. Just go click on the file menu. Okay, new button pe click karo, then you have the options for different applications and languages. Then choose C# language and choose the application. Okay, I have already created web application too in the last lecture, so I am again opening the same today. ठीक है, अलग अलग मैं create नहीं करूँ, फिर वो बहुत load होता है system में. So I am using the same application, web application too, that we have created in the last lecture. ठीक है, जो last lecture में हम लोगों ने जो open किया था web application too, वही हम लोग use, वही मैं open कर रही हूँ. Okay, yes, setup जो setup file के लिए शोएब पटेल ने मुझे mail किया था, sorry email ID दिया था, तो I have already sent to शोएब. Yes, Kirti, today I will send to the setup to you. Okay, email ID patch मैं करती हूँ, आपने मुझे कल दिया था, तो आज मैं आपको setup जो है that I will mail you. Install करो please, other students जिसके पास system है please install करो. Okay, and किसी को चाहिए तो शोएब will send. ये शोएब आपने install किया? शोएब मैम इंस्टॉल किया, मैंने आपको मेल किया था उसी दिन. सेटअप हाँ मैम. इंस्टॉल हो गया सिस्टम में? हाँ मैम. ओके, वेरी गुड. कीर्ति आज आपको देती हूँ मैं, ठीक है, देन यू आल्सो इंस्टॉल इट. यस मैम. अदर स्टूडेंट प्लीज इंस्टॉल करो. तो दिया है मैंने शोएब से, उससे भी यू कैन टेक द सेटअप. कीर्ति को दे दूंगी तो उससे भी ले सकते हो, अदरवाइज मुझे मेल करो, आई विल सेंड इट. आपका ईमेल आईडी मुझे देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, सेटअप. बट इंस्टॉल करो उसको. यस, तब तक ये ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग थोड़ा थियरी देख लेते हैं. ओके, anatomy of web form. When we will open the web form, there are two ways to create the designing in web form. The one is directly from the toolbox, we can take the different controls and do the designing. Okay, and the other way is to using the source code. Okay, to using the source code use करके we can create our designing also. ठीक है, source code में you can write the HTML जो tags है, you can use that HTML tag in the source language. ठीक है, source code जो है उसमें HTML tag you can write. अब उसमें से लिख सकते हो h tag, table tag, whatever you want to do design, you can also do the design with HTML tag से भी you can do. Okay, source code में जाके आप कर सकते हो. Otherwise directly toolbox में controls available, वहाँ से drag and drop करो, you can design. Okay, तो ये हमने last lecture में आपको दिखाया था. The page directives. Okay, the first line जो हम design open करते हैं, the first line is page directive. Okay, the page directive. What is the page directive? You will find this page directive in the source code. ठीक है, web application में जो source code है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा page directive. ठीक है, और page directive क्या है? It gives the basic detail. Page directive gives the basic details about your page. What language you are going to use. ठीक है, कौन सा language आप use करने जा रहे हो. Then events, auto events you are using, yes or no, true, false, that it defines. Then code file. Okay, every design page has a code file. हर एक डिजाइन पेज के लिए क्या होगा? कोड फाइल होगा. ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग तो करोगे बट कोडिंग करना पड़ेगा ना, तो फॉर एवरी डिजाइन पेज देयर इज अ कोड फाइल ऑटोमेटिकली जनरेटेड. हमको जनरेट नहीं करना, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. You will find this code file in the Solution Explorer. आपको कहाँ पे मिलेगा? Solution Explorer में you will find, यहाँ पे this is Solution Explorer. ठीक है, this is a Solution Explorer. ये Solution Explorer में you will find the source design file as well as coding file you will find. ठीक है, ये हमने in the last section में यहाँ पे login page we have created. ठीक है, default page भी था एक already. हमने अपना login page create किया था login.aspx. What is the meaning of aspx? aspx मतलब क्या?
डिजाइनिंग एंड वी आर डूइंग दैट डिजाइनिंग इन सी शार्प लैंग्वेज में हमने यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे .aspx। अगर यू विल यूज वीबी लैंग्वेज तो एक्सटेंशन क्या हो जाता है .vb। ठीक है, दिस इज अ लॉगिन पेज दैट वी हैव डिजाइन इन द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिजाइन किया था। ठीक है, मैंने आपको ये रन करके दिखाया था। व्हेन आई विल क्लिक इन आई विल क्लिक ऑन ये लॉगिन पेज में, जब बटन पे मैं क्लिक करूंगी ना तो वेब फॉर्म विल ओपन। ठीक है, ये हमने रन करके मैंने आपको दिखाया था। दिस इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज विंडो आपको दिखाती हूँ बाद में। तो दिस इज आपका डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग सरफेस। यू कैन डिजाइन इन दिस यूजिंग द टूल बॉक्स से, या तो फिर सोर्स कोड में जाके। दिस इज योर सोर्स कोड डिजाइन। यू कैन सी ये ऑप्शन है, देयर आर टू ऑप्शन, डिजाइनिंग एंड सोर्स कोड। ठीक है, तो सोर्स कोड में जाके आप डिजाइनिंग कर सकते हो, अदरवाइज डिजाइन में तो डायरेक्ट टूल बॉक्स अवेलेबल है। तो जो भी आपको यूजफुल, मतलब जो भी आपको जम रहा है, कंफर्टेबल है, यू कैन यूज। ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो ये जो एनाटॉमी ऑफ वेब फॉर्म है, ये यहाँ का एक्सप्लेन, दे आर एक्सप्लेन दिस। ओके, द फर्स्ट फाइल इज पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव में क्या क्या है, कोड बिहाइंड फाइल, मतलब लॉग, जो ये लॉगिन पेज है। ठीक है, दिस इज अ लॉगिन पेज। उसका कोडिंग फाइल क्या होगा, हाउ टू ओपन द कोडिंग फाइल। तो यहाँ पे देखो, व्हेन यू विल क्लिक दिस ना, ये टैब पे क्लिक करोगे तो लॉगिन डॉट aspx.cs, cs मतलब क्या, कोडिंग पेज। ठीक है, कोडिंग पेज, दिस इज अ कोडिंग पेज। जब में हेडर फाइल ऑलरेडी गिवन, namespace is given, class is given, and this is the event. ठीक है, तो you will write coding here. ठीक है, then बटन पे if you want to create button event, बटन event पे क्लिक करना है, तो डबल क्लिक करो तो बटन event will be open. ठीक है, ये वेब फॉर्म 1 जो हमने किया था, if you want to open web form, this is a web form. ठीक है, different pages you can create. These all are the pages. This is first page web form, this is login second page. ठीक है, ये वेब फॉर्म 1 का कोडिंग पेज है, ये सेकंड लॉगिन पेज का कोडिंग पेज। एवरी डिजाइन हैज अ कोडिंग पेज। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज डिजाइन, व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज कोडिंग फाइल। डिजाइन एंड सोर्स कोड, ठीक है, ये दिस इज अ कोडिंग सोर्स कोड है, बट फॉर डिजाइनिंग के लिए सोर्स कोड है। किसके लिए है, डिजाइनिंग के लिए सोर्स कोडिंग है। ठीक है, यू कैन डू डिजाइनिंग विद द कोडिंग से भी कर सकते हो, तो वो इसके लिए है। पेज डायरेक्टिव है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है, बाय डिफॉल्ट ये सारी इंफॉर्मेशन होता है, हेड एचटीएमएल, then form tag is there. Okay, and within the form tag you can do your designing with the codings also, but every control के बाद आपको क्या लिखना है, run at server। क्या लिखोगे, run at server, अदरवाइज डायरेक्टली अवेलेबल है, टूल बॉक्स अवेलेबल है। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करूँ बिकॉज दिस इज न्यू फॉर यू। जब आप उसको यूज करोगे, ओपन करोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने क्या ओपन किया था, क्या कर रहे थे मैम। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक ही चीज बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ। एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया, वेयर इज डिजाइन, हाउ टू डू डिजाइनिंग, ठीक है, या तो फिर कोडिंग पेज कौन सा है, हाउ टू ओपन द कोड पेज, ये ऑल आर द बेसिक थिंग्स। ये बेसिक एक बार आपको ये समझ में आएगा, देन कोड तो यू कैन डू। ठीक है, कोडिंग का इतना कुछ इशू है नहीं, आप कर लोगे। तो यहाँ पे यू कैन फाइंड ऑल दी बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स और फाइल्स जो आपने क्रिएट किया होगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज योर वेब एप्लीकेशन में वेब फॉर्म्स है। ओके, वी कैन क्रिएट द मल्टीपल फॉर्म्स विद इन द वेब एप्लीकेशंस। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, वो आई विल सेंड दिस फाइल, जस्ट रीड दिस। ओके, फॉर्म्स वगैरह, राइटिंग कोड के लिए सीएस फाइल, कोड बिहाइंड, उसको क्या बोलते हैं, कोड बिहाइंड भी बोलते हैं। इवेंट हैंडलर, ठीक है, हाउ टू क्रिएट द इवेंट्स कैसे क्रिएट करना है। तो वन वे तो मैंने आपको दिखाया, इफ यू वांट टू क्रिएट बटन्स, इवेंट आपको क्रिएट करना है तो बटन पे क्लिक करोगे तो बटन इवेंट विल बी ओपन। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर यू कोई वेबसाइट विजिट किया होगा तो देखना टेक्स्ट बॉक्स में, व्हेन यू विल क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स ना, तो अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने से कुछ परफॉर्मिंग होना चाहिए, तो कुछ यू मतलब डिस्प्ले होना चाहिए, तो यू विल यूज द टेक्स्ट बॉक्स इवेंट। तो आप जो कोडिंग है वो कहाँ पे करोगे, टेक्स्ट बॉक्स इवेंट में। वी हैव ऑलरेडी डन इन द जावास्क्रिप्ट में भी हमने इवेंट्स पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इवेंट्स क्रिएट करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे रेडीमेड है, यहाँ पे रेडीमेड है इवेंट्स, तो आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है, जस्ट बटन पे डबल क्लिक करो। ओके, क्लिक इवेंट इज ओपन हो गया एंड उसमें राइट द कोड, मतलब व्हेनेवर यूजर क्लिक ऑन द बटन तो दिस एक्शन विल बी परफॉर्म। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिया है। ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग दी वन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस कंट्रोल्स ना, ये सब इसको सब क्या बोलते हैं, ऑल आर दी कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स है, बटन, लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। तो यू कैन सी, जैसे सिलेक्ट करो यू कैन सी द नेम टेक्स्ट बॉक्स 1, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है।
ठीक है, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। इफ यू वांट टू ओपन द इवेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स का कुछ इवेंट आपको यूज करना है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स अवेलेबल है, तो उसको कैसे इवेंट ओपन करोगे आप, डबल क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज इवेंट बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स से वांट मोर इवेंट्स आपको चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज मतलब अगर कोई यूजर इसमें कुछ टाइप करेगा देन यू हैव टू डू समथिंग, ओके। तो अगर ऐसा कुछ कोडिंग करना है तो आपको कहाँ पे कोडिंग लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट चेंज इवेंट में, ओके। यू हैव टू डिसाइड कि क्या कंट्रोल पे क्लिक करने से क्या चीज होना चाहिए, वो आपको टेक्निकली डिसाइड करना है। अगर आप कभी कभी देखो जैसे टाइप करते हो ना, कोई टेक्स्ट बॉक्स में चेंज कलर चेंज हो जाता है, या तो और कोई आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो टेक्स्ट जो भी आपको करवाना है, तो टेक्स्ट चेंज होने से इवेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इवेंट्स, तो व्हाट इज इवेंट क्या है। बटन पे क्लिक होने से सेकंड पेज पे जाना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो हमने कोडिंग कहाँ पे किया, वी हैव डन द कोडिंग इन द बटन्स क्लिक इवेंट। कैसे ओपन किया, बाय डिफॉल्ट बटन का क्लिक इवेंट है, ओके। वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने से, टेक्स्ट चेंज होने से कुछ ओपन होना चाहिए, तो उसका बाय डिफॉल्ट इवेंट ओपन होता है। दिस इज अ वन वे टू ओपनिंग द इवेंट्स। द सेकंड वे कैसा है, व्हाट इज द सेकंड वे टू ओपन द इवेंट्स, तो सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, ओके। सिलेक्ट करो मतलब उसको कर्सर से सिलेक्ट करो, देन गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो में जाओ, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, बट अभी हमको इवेंट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सी ये द सिंबल इवेंट्स, येलो कलर का एक सिंबल है, दैट इज फॉर इवेंट्स। व्हेन यू विल क्लिक ना, तो जो उसका इवेंट्स होगा, ठीक है, इवेंट्स ओपन होगा, ठीक है। तो कौन सा इवेंट है, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट इवेंट, ओके। एक ही इवेंट है, टेक्स्ट चेंज इवेंट है टेक्स्ट बॉक्स का। तो यहाँ से व्हेन यू विल डबल क्लिक करोगे ना तो भी ओपन हो रहा है, अदरवाइज डायरेक्टली इस पर क्लिक करके करोगे तो भी होगा। इफ यू वांट टू यूज दी लिस्ट बॉक्स का कोई इवेंट आपको चाहिए, ठीक है, यू वांट टू शो के इवेंट्स कौन सा इवेंट्स लिस्ट बॉक्स का अवेलेबल है, तो click the list box, go to the properties window and you click on this events, okay। तो list box का कौन सा इवेंट है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट, ओके। कौन सा इंडेक्स है, सॉरी कौन सा इवेंट है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, मतलब व्हेनेवर यूजर विल क्लिक ऑन दिस लिस्ट बॉक्स के आइटम पे जब क्लिक करेगा, फर्स्ट आइटम है तो सेकंड है तो थर्ड आइटम से जब वो क्लिक करेगा तो कुछ एक्शन आपको परफॉर्म करवाना, तो यू विल राइट द कोडिंग इन दिस इवेंट, ओके। यू विल ऑलवेज राइट द कोडिंग इन सम इवेंट्स में ही आप कोडिंग करोगे, ठीक है। आप कोडिंग कहाँ पे करोगे, कोई ना कोई इवेंट्स में करोगे। लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करने से कुछ होना चाहिए, बटन पे क्लिक होने से कुछ होना चाहिए, अदरवाइज व्हेन योर पेज विल रन, फर्स्ट टाइम जब आपका पेज रन हो रहा है, ओके, कुछ किसी पे क्लिक करके नहीं करना है आपको, व्हेनेवर जब पेज रन करोगे तब होना चाहिए। तो यू कैन यूज द पेज लोड इवेंट के, जब पेज लोड होगा, व्हेनेवर द पेज विल रन फर्स्ट टाइम, एट दैट टाइम आपको कुछ रन करवाना है, आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो यू कैन राइट इन दिस इवेंट्स, ओके। मतलब कोडिंग आप कहाँ पे लिखोगे, कोई ना कोई इवेंट में यू विल राइट दी कोडिंग। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे वैसे वैसे वी गेट द आइडिया। एवरी कंट्रोल हैज सम इवेंट्स, हर एक कंट्रोल्स को अपना इवेंट्स भी है एंड प्रॉपर्टीज भी है, ओके। एवरी कंट्रोल हैज सम इवेंट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इवेंट क्या है, दैट यू क्लियर, इवेंट क्या है समझ में आ गया, इवेंट इज यूज फॉर कोडिंग, ठीक है। इवेंट किसके लिए यूज करोगे आप लोग, कोडिंग के लिए यू विल यूज द इवेंट्स, ओके। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने से कुछ होना चाहिए, या तो बटन पे क्लिक करने से कुछ होना चाहिए, या तो कैलेंडर सिलेक्ट करने से कुछ होना चाहिए, ओके। या तो जब कुछ पेज रन करो एट दैट टाइम डायरेक्टली होना चाहिए, तो भी आप कर सकते हो। तो जो भी इवेंट्स है वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इवेंट हमको जरूरी है, ठीक है। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस, जितना कोडिंग जितना प्रोग्राम्स करोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगी, आफ्टर 2 वीक्स 1 वीक्स के बाद आपको खुद से आप कर पाओगे अगर प्रैक्टिस किया तो, अदरवाइज ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो हो गया इवेंट्स, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज, ओके। तो इवेंट्स आर यूज फॉर दी कोडिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज, व्हाट इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब क्या, प्रॉपर्टीज मतलब क्या, लुक्स चेंज करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज सम लुक्स, चलो हम लोग एक न्यू एप्लीकेशन ले रहे हैं, सॉरी, हाउ टू चूज वेब फॉर्म, सपोज मुझे न्यू वेब फॉर्म लेना है, ठीक है। न्यू आई वांट टू टेक न्यू वेब फॉर्म, ऑलरेडी यहाँ पे एक है वेब फॉर्म 1 है, लॉगिन है, बट मुझे और कुछ न्यू पेज लेना है, तो गो टू द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन दी वेब एप्लीकेशन 2, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ पे राइट क्लिक, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम, यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स, बट अभी हम लोग वेब फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे, वी विल ऐड ओनली वेब फॉर्म। वेब फॉर्म ऐड किया, गिव दी नेम, यहाँ पे मैं दे रही हूँ, सॉरी रजिस्ट्रेशन पेज देती हूँ मैं, चलो यहाँ पे registration.aspx, शॉर्ट में आई एम राइटिंग ये REGI, ठीक है। .aspx मतलब क्या, वो C# लैंग्वेज वी आर यूजिंग,
ओके सी registration.aspx ओपन हो गया पेज, ठीक है। सोर्स कोड है एंड डिजाइनिंग है, यू कैन डू दी कोडिंग फ्रॉम हियर, आप यहाँ से भी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी जब हम लोग पेज दे रहे थे दिस ऑल थिंग्स आर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, ठीक है। हमको कुछ लिखना नहीं है, पेज डायरेक्टिव्स है, दिस इज पेज डायरेक्टिव, ये फर्स्ट पेज डायरेक्टिव ऑटोमेटिकली आ रहा है। डॉक टैग इज आल्सो ऑटोमेटिकली कम्स, HTML हेड बॉडी वगैरह डिवीजन हमको क्रिएट करके दिया है, फॉर्म क्रिएट करके दिया है। नाउ अभी हम लोग यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू वेज, एक तो यहाँ से ले लो, सपोज यू वांट टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स, तो राइट ये टेक्स्ट बॉक्स ASP टेक्स्ट बॉक्स ID दे दो, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। लेबल क्रिएट करना है तो लेबल 1 ASP लेबल ID वैसे कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली डिजाइन में जाके हम लोग एक लेबल ले रहे हैं, टेक वन लेबल, डबल क्लिक करो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वन मोर लेबल आई एम टेकिंग, 4 लेबल मैंने ले लिए, ठीक है। आई एम टेकिंग 4 लेबल, मैंने एंटर दे दिया। व्हाट इज लेबल आई विल टेल यू, लेबल क्या है मैं आपको बताती हूँ, ओके। लेबल मतलब क्या, टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट टू द यूजर, ठीक है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट टू द यूजर, को आपको सम टेक्स्ट दिखाना है कि प्लीज एंटर द नेम, एंटर योर एड्रेस वगैरह व्हाटएवर, आपको कुछ भी यूजर को दिखाना है तो यू कैन राइट इन द लेबल, ओके। दिस इज लेबल 1, जब सिलेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड लेबल 1 LABEL लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिया तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा, सी ASP लेबल 1 ID लेबल 1 रनेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे सोर्स कोड में आ गया। तो साइमल्टेनियसली वो दोनों एक दूसरे को मैनेज कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया। अदरवाइज आप यहाँ पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली डिजाइन व्यू में भी आ जाएगा, तो वो अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने कुछ तो लेबल ले लिया, ये लेबल को थोड़ा हम लोग मिडल में कर देते हैं। तो मैं कैसे, वेट आपको ना मैं कीबोर्ड वर्चुअल कीबोर्ड से दिखाती हूँ, तो आपको समझ में आएगा विच कीज आई एम यूजिंग फ्रॉम कीबोर्ड, ओके। वेट, ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लेबल, आई एम सिलेक्टिंग दिस लेबल, ठीक है। तो मुझे लेबल को सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे ना वो ऑप्शन ही नहीं है, वेट ये हैंग हो गया अगेन। इसको हम हेडिंग के लिए यूज करें, एक मिनट मैं डिलीट कर दे, वेट। चलो मैं पहले अगेन आई एम टेकिंग द लेबल्स, ठीक है। अगर मैं ले रही हूँ थोड़ा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टाइम्स मैंने लेबल ले लिया, एंटर। देन ये सेकंड लेबल, वो ना वर्चुअल कीबोर्ड में 4 एरोस नहीं है ना, 4 एरोस से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सिलेक्ट करो, ओके। देन आपका जो कीबोर्ड में 4 एरोस दिया हुआ है ना, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो जो राइट लेफ्ट वाला है ना वो आई एम सिलेक्टिंग, एंड देन उसको एडजस्ट कर एंटर दे रही हूँ मैं, ठीक है। Yes, this is label. Okay. Okay, this is first level. If I want to give this some मुझे यहाँ पे देना है कि दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज, ऐसे मुझे लिखना है। आई वांट टू गिव द टाइटल, मुझे टाइटल देना है, तो टाइटल इज वन टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। वो टेक्स्ट है,
तो आप उसको शो करवा सकते हो इन द लेबल्स में। तो हाउ कैन यू सेट द टेक्स्ट, तो आप यू कैन सेट द टेक्स्ट यूजिंग द प्रॉपर्टीज विंडो। कहाँ से सेट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज, सिलेक्ट द लेबल, go to the properties window and select the text property। देखो this is a text label 2, हमने यहाँ पे label 2 select किया ना, तो select कैसे किया मैंने, select the label 2, then go to the properties window, here you can find label 2 and set the text property। this is a text property, so whatever text I am writing here na, it will display on the label। so here I am writing this is registration page। okay, this is registration page, that heading I am giving here। okay, again this is registration page, yes or no। okay, now अभी और मुझे properties I want to set, तो क्या करना है, just again select that label, go to the properties window, बहुत सारा properties है, ठीक है, 4 color। okay, this is 4 color properties, बहुत सारा properties है, जो जैसे यूज करो वैसे आपको समझ में आएगा। this is a 4 color। okay, if I want to set 4 color, ठीक है, मुझे 4 color set करना है। okay, आ गया, चेंज हो गया 4 कलर। दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज, अगेन गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो, फॉन्ट, ठीक है, मुझे फॉन्ट, एक मिनट, साइज उसका चेंज करना है। ओके, फॉन्ट में बोल्ड फॉल्स है, अगर मैं ट्रू करूंगी तो इट विल बी बोल्ड। ओके, इटैलिक फॉल्स है, अगर मैं फॉल्स करूंगी तो ट्रू हो जाएगा। साइज, ओके, फ्लैट साइज, सी दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज। तो वॉट एवर इफेक्ट you want to apply, so you can set through the properties window। तो again but every time you have to select this label। ये मैं select किया लेबल को, again properties window में गया मैं, ठीक है, देन यहाँ पे है ओवरलाइन, ओवरलाइन उस पे नहीं है, ट्रू करोगे तो ओवरलाइन, देखो उसके ऊपर लाइन आ गया, रेड लाइन यू कैन सी ओवर द टेक्स्ट। ओके, तो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट इज अ प्रॉपर्टी है, फॉल्स है, ट्रू करोगे तो आ गया उस पे। तो ये सारी चीजें वी कैन डू इन HTML, बट हमको कोडिंग की जरूरत पड़ती थी। ओके, एवरीथिंग वी हैव टू यूज टैग्स, यू टैग्स, एल टैग्स, बट यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन सेट यूजिंग द प्रॉपर्टीज विंडो, ठीक है। तो ये स्ट्राइक आउट हमको नहीं चाहिए, फॉल्स कर दिए, अंडरलाइन चाहिए, इट इज अ फॉल्स, तो ट्रू करो, अंडरलाइन आ गया। ओके, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, हाइट है, विड्थ है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाइट यू कैन सेट, विड्थ यू कैन सेट, ठीक है। देन व्हाट इज टूल टिप, टूल टिप प्रॉपर्टी आई विल टेल यू, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है वो हर एक कंट्रोल्स के लिए कॉमन प्रॉपर्टीज भी है, हर एक कंट्रोल, एवरी कंट्रोलर स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। दिस इज अ बैक कलर प्रॉपर्टी। अब बेसिक प्रॉपर्टीज आई एम शोइंग यू, बाकी हम लोग डिटेल्स में पढ़ना ही है प्रॉपर्टीज हर एक कंट्रोल्स के लिए। तो दिस इज बैक कलर, ओके, बैक कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, ऑल आर द कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द कंट्रोल्स, हर एक कंट्रोल्स के लिए प्रॉपर्टी कॉमन है। बॉर्डर विड्थ, चलो बॉर्डर स्टाइल देते, क्योंकि कोई स्टाइल ही नहीं दिया है, सॉलिड दे देते तो बॉर्डर आ गया, ठीक है। आपको बॉर्डर विड्थ देना है तो यू कैन सेट द विड्थ, देखो 10 किया तो उसका बॉर्डर का साइज हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो कम हो गया। तो दिस इज प्रॉपर्टीज, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। टूल टिप क्या है, दैट आई विल शो यू। ओके, एनेबल्ड अभी ट्रू है, मतलब दिखाई दे रहा है। हाइट विड्थ यू कैन सेट, ठीक है, हाइट 15 दिया तो देखो छोटा हो गया ना, दैट इज स्मॉल। ओके, तो यू कैन सेट हाइट विड्थ आल्सो। तो जो चीज के लिए वी आर डूइंग कोडिंग ना, वो अभी डायरेक्टली हो रहा है इन द ASP.NET में यूजिंग द प्रॉपर्टीज विंडो से हो रहा है। ओके, दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज। नाउ सेकंड लेबल में आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग, मुझे कुछ डिस्प्ले करवाना है, एंटर योर नेम। तो सिलेक्ट दैट लेबल, लेबल को सिलेक्ट करो, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो एंड व्हिच प्रॉपर्टीज यू हैव टू सेट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो आपको कंट्रोल का कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखने देगा आपको, आपको हर एक चीज यू हैव टू डू विद द प्रॉपर्टीज विंडो से ही करना है, ठीक है। तो आई एम सिलेक्टिंग द लेबल, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो एंड टेक्स्ट। तो हियर आई विल राइट, मुझे लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट, सॉरी, तो एंटर यूजर नेम आई एम राइटिंग, ठीक है। सी एंटर योर नेम, शॉर्ट में लिखती हूँ, एंटर योर नेम, ओके। सी एंटर योर नेम दिखाई दिया, ओके। दिस इज लेबल 1, नाउ दिस इज लेबल 2। तो सिलेक्ट द लेबल, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो, सिलेक्ट द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट चेंज करने के लिए यह द टेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है,
text property. Okay, then enter name, then address, whatever field you want to enter आप करवा सकते हो. ठीक है, enter address लिखा मैंने short में. Then again I am selecting another label, label 5. This is label 5. Okay, you can see here. आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबल 5, उसका आईडी क्या है, लेबल 5. यू वांट टू चेंज नेम लेबल 5, सबको नेम चेंज करना तो यू कैन चेंज द नेम आल्सो. ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे एंटर फोन नंबर. ठीक है, एंटर फोन नंबर. नाउ यहाँ पे सॉरी properties window, text property again I am setting, enter email, enter email ID. हो गया. ओके, नाउ ये तो क्या हो गया आपका लेबल, यूजर को दिखेगा एंटर योर नेम. नाउ यू वांट टू स्कैन सम वैल्यू फ्रॉम द यूजर्स. यू हैव द कौन सा कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. यू हैव द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. ठीक है, यूजर एंटर किस में कर पाएगा, टेक्स्ट बॉक्स. यूजर कैन नॉट एंटर इन द लेबल में एंटर नहीं कर सकता. लेबल कंट्रोल इज यूज्ड ओनली टू शो द टेक्स्ट टू द यूजर. यूजर को टेक्स्ट शो करवाने के लिए वी हैव द लेबल है. ओके, टेक्स्ट बॉक्स करवाने के लिए इनपुट करवाने के लिए वी हैव द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. ऑल कंट्रोल्स आर ना और असेंडिंग ऑर्डर में उसको किया है, तो टी से स्टार्ट होगा टेक्स्ट बॉक्स. 1 2 3 4 टेक्स्ट बॉक्स आई एम टेकिंग हियर. दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स. ओके, वेट, हम लोग ऐसे नहीं करते, वेट, हम लोग कर्सर पॉइंट करेंगे. ठीक है, दिस इज फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हमको चाहिए सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं कर्सर सेट करी. ओके, देन आगे वो पोजीशन पे आ रहा है, वो टेबल के सामने आ रहा है. ठीक है, तो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स. जो भी आपको करना है इजीली डिजाइनिंग हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, प्रैक्टिस. ओके, तो ये आपका पेज इजीली हो गया डिजाइन. हर एक बटन ले लो, जरा स्पेस देके मिडिल में. मैं यहाँ पे बटन आई एम टेकिंग. ओके, बटन, दिस इज बटन. ओके, नाउ बटन पे सबमिट. इफ यू वांट टू राइट सबमिट, आपको लिखना है, या तो फिर जो भी आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, तो ओके या तो रजिस्ट्रेशन, जो भी. क्लिक ऑन दिस, कुछ भी यू वांट टू डिस्प्ले. तो अगेन क्या करोगे, टेक्स्ट दी बटन, सिलेक्ट दी बटन, बटन को सिलेक्ट करो, गो टू दी प्रॉपर्टीज विंडो. एंड बटन का कौन सा इवेंट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे सबमिट, आपको जो भी लिखना है यू कैन राइट हियर. आ गया सबमिट बटन. ओके, दिस इज सबमिट बटन. नाउ अगर आपको उसका और कोई कलर वगैरह बॉर्डर चेंज करना है, तो अगेन सेम प्रोसेस आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए और विच आर दिस स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको. ठीक है, एक उसमें देख के आपको नहीं समझ में आएगा. रिज्वाइन करना प्लीज स्टूडेंट्स, रिज्वाइन. ओके, अगर एंड हो जाएगा तो रिज्वाइन करो. मैं आपको न्यू लिंक दूंगी, उस पर रिज्वाइन करना. ओके, सबमिट बटन पे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, चलो बैक कलर देती हूँ मैं. ऑल एट दी प्रॉपर्टीज. ठीक है, ऑल एट दी प्रॉपर्टीज, बैक कलर हो गया. ठीक है, बॉर्डर कलर आपको देना है, तो यू कैन आल्सो सेट दी बॉर्डर कलर. ठीक है, बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल बटन के लिए. मैम, हाँ बोलो. मैम ये सब फिजिकली मतलब कॉलेज आके प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्या मैम ये सब? कॉलेज आके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दैट वी हैव टू टेक परमिशन. ओके, हम सरस्वती मैम से बात करेंगे, अगर अलाउ है करते हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स को, तो हम लोग वीक में 1 डे या तो 2 डेज ऐसे अरेंज करके फिर कॉलेज में आके हम लोग करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कॉलेज. ओके, कॉलेज मैम अलाउ. चलेगा मैम, वीकली 1 डे चलता है हाँ मैम, चलेगा? हाँ तो भी चलेगा, वीकली 1 डे होगा ना तो भी चलेगा. बट उसके लिए हमको मैम से पहले बात करना पड़ेगा, मैम से परमिशन, क्योंकि मैम भी फिर आगे प्रिंसिपल सर वगैरह से परमिशन लेंगे, उसके बाद ये सारा प्रोसेस है. ठीक है, अभी क्योंकि अलाउ नहीं है ना मतलब कॉलेज में, तो देखते हैं अभी क्या होता है. ठीक है, तो इसलिए बोलो जिसके पास सिस्टम है दे स्टार्ट करो ये सब करना. ओके, और कोई अपना फ्रेंड वगैरह है, कोई पास में नियर बाय रह रहा है आपके, तो सैटरडे संडे जाके एक बार उसके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लो. अभी के ऐसे करो, मैम से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी लगता नहीं कि इतना जल्दी स्टार्ट होगा, अभी क्या पता सिचुएशन क्या है. अगर कॉलेज में आने देते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि आपको वही सारा प्रैक्टिस हो जाएगा. अदरवाइज अभी जिसके पास सिस्टम है उसके साथ बैठ के करो. ओके, जरूर, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस पे ही है.
आप देखोगे कितना, अगर जब तक परफॉर्म नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट गेट द आइडिया कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है, खुद से करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या है। बाकी वीडियो इज रेडी फॉर यू व्हेनेवर यू विल स्टार्ट प्रैक्टिकल, यू कैन रिफर दिस वीडियो। ये जो लेक्चर्स के वीडियो आपके पास अवेलेबल है, तो जो स्टेप्स मैं इसमें करी वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू कैन यूज दिस वीडियो, ठीक है, अगर जब भी फ्यूचर में करोगे तभी। बट अभी ट्राई करो आपके फ्रेंड के पास, और किसी के पास होगा तो वीक में 1 डे बैठ के, ओके, ठीक है। यस मैम। मैं मैम से मैम बात आप भी एक टाइम मैम रिक्वेस्ट कर दो क्या हो, मैम सरस्वती हाँ मैम। हाँ, आई विल टॉक विद दी मैम, ठीक है, फिर देखते, क्योंकि मैम के हाथ में भी नहीं है, जब तक ऊपर मैनेजमेंट से, कॉलेज ऊपर से परमिशन आना चाहिए ना। ओके, आई थिंक अलाउ करेंगे अभी, देखते हैं, मैं बात करूंगी मैम से। चलो, दिस इज सबमिट ओके बटन, मैम। ओके, दिस इज सबमिट बटन। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज देखो, और इफ यू वांट टू चेंज दी ये सारे लेबल्स का कलर वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह देना, तो यू कैन आल्सो डू, ओके। टेक्स्ट बॉक्स को अगर कुछ देना है, प्रॉपर्टी सेट करना है, तो वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी फॉर कलर है, फॉन्ट कलर है, ठीक है, जो भी आपको करना है। यस, देन टेक्स्ट बॉक्स का मोड इज दैट, ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स। अब दिस इज एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, तो एड्रेस तो मल्टीपल होता है, ठीक है, एक लाइन में किसी का एड्रेस नहीं होता, तो वी नीड दी मल्टीपल लाइंस फॉर द एड्रेस, ठीक है। तो यू कैन चेंज दिस टेक्स्ट बॉक्स टाइप, आप टेक्स्ट बॉक्स का जो टाइप है यू कैन चेंज। तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी। सी, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, पासवर्ड, कलर, डेट, ऑल प्रॉपर्टीज यू कैन सेट। यहाँ पे हम लोग मल्टी लाइन में आई एम टेकिंग, तो देखो एड्रेस की जो प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स दैट इज चेंज हो गया ना, ये सिंगल लाइन है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए ऑल्सो वी हैव दी मोड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट, देन गो टू द टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, ठीक है। पासवर्ड लोगे तो पासवर्ड जब आप एंटर करोगे ना इसमें कुछ एट द रन टाइम, तो आपको वो स्टार्स में दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कोडिंग थ्रू करते थे इन द एचटीएमएल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, ठीक है। ईमेल आईडी है, तो ईमेल का हमने ले लिया है प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है। टेक्स्ट मोड जो है दैट आई एम टेकिंग ईमेल के लिए है, तो ईमेल के लिए, ओके, बहुत सारा इसका मोड है। फोन नंबर है, तो फोन नंबर के लिए, फोन नंबर के लिए इफ यू वांट टू, तो आप फोन नंबर ले लो, ओके। टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी में फोन नंबर, टेक्स्ट, मैं इंटर एड्रेस में जो आप ऊपर नीचे करने के लिए किए हैं बटन, क्या हुआ? यस, क्या ये हुआ? कैसे किए? क्या? इंटर एड्रेस में जो मैम आप किए हैं ऊपर नीचे करने के लिए, नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई बोलेगा, कौन बोलेगा? ये जरूर, क्या बोल रहे हैं? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम मेरे को भी आवाज सुनने नहीं जा रहा। हम ये बोल रहा है जो इंटर एड्रेस वाला जो लाया है ना ऊपर नीचे शो करे, वो कैसे आया वो पूछ रहा है। ये कैसे आया? ओके ओके ओके, ये ना, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो वाला ना, शाहजाद? यस मैम। यस मैम। हाँ, Yes. वो मैंने मोड चेंज कर दिया, क्योंकि हम एड्रेस जो है दैट इज मल्टीपल लाइंस होगा ना, एड्रेस तो किसी का एक लाइन में नहीं होता। तो मैंने क्या किया, उसका प्रॉपर्टीज आई हैव चेंज। सिलेक्ट करो टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। चलो हम लोग एंटर, इसको मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। दिस इज सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आपको इसको मल्टी लाइन करवाना है, इफ यू वांट टू एंटर मल्टीपल लाइंस इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो एंड टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, ओके। तो मैंने मल्टी लाइन किया, क्या किया? मल्टी लाइन, देखो आ गया यहाँ पे मल्टी लाइन। टेक्स्ट बॉक्स का टाइप आई एम चेंजिंग, ओके। टेक्स्ट बॉक्स का टाइप मैंने चेंज कर दिया। अगर नेम है, अगर सिंगल लाइन में है, तो मैं क्या करूंगी, उसको अगेन सिलेक्ट करूंगी, प्रॉपर्टीज विंडो में आई विल गो एंड चेंज द टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कर रही हूँ, तो सिंगल लाइन आ गया। क्लियर शाहजाद? अगेन सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में Yes, देखो, ma'am. टेक्स्ट मोड में मल्टी लाइन हो गया, ओके। तो